आज से ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर कट एक डायरेक्शन दिया है, जजमेंट दिया है टू क्लेम हिमसेल्फ एज आंसू प्रेसिडेंट। ही कैन नॉट यूज द एम्बलम सील साइन एज आंसू प्रेसिडेंट। के बाद अगर आप लोग में से लेजेंड यादव को कोई भी प्रेसिडेंट आंसू बोल के इंटरटेन करता है, इवन द मीडिया फ्रेटर्निटी ऑल्सो, आई विल फाइल इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट दैट मीडिया फ्रेटर्निटी ऑल्सो, दैट पर्सन ऑल्सो, दैट स्टेक होल्डर ऑल्सो। Arunachal Pradesh. Today, Honorable High Court Itanagar has slightly interference and pronounced a remarkable judgment in pertaining to all Nisi Student Union. Honorable High Court has set aside the earlier order of Senior Division UPS CGM Court and restore the earlier order of Junior Division UPA. I do hereby congratulate all the well-wishers, student fraternity of the community and state as a whole. आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो लेजेंड यादव है, खुद को प्रेसिडेंट बोल के जो क्लेम करके जो पब्लिक समाज एंड कम्युनिटी में जो है कंफ्यूजन जो क्रिएट एंड नोशंस जो क्रिएट करके रखा हुआ है, उनके लिए एक क्लियर कट जजमेंट आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पास किया है। जजमेंट ये कहता है कि द रेस्पोंडेंट नंबर 1 श्री लेजेंड यादव हैज बीन इलेक्टेड by the way of an election process which is prima facie not conducted as per the constitution of ANSU. He cannot be allowed to retain the benefit which he has gained through a manner which is not allowed as per the law. तो आज से ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर कट एक डायरेक्शन दिया है, जजमेंट दिया है। He should be refrained. He has been barred to claim himself as ANSU president. He cannot use the emblem, seal, sign as ANSU president. And I really thanks to Honorable Court also for rightly and timely making this remarkable decision. और मेरा एक मैसेज एंड लीगल एडवाइस के तौर पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगा हमारा स्टेट का जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है, हमारा कम्युनिटी का सीनियर्स और हमारा कम्युनिटी का जो यूथ एंड स्टूडेंट एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मीडिया पर्सन्स ऑल्सो। आज के बाद अगर आप लोग में से लेजेंड यादव को कोई भी प्रेसिडेंट आंसू बोल के इंटरटेन करता है, इवन द मीडिया फ्रेटर्निटी ऑल्सो, I will file in contempt of court against that media fraternity also, that person also, that stakeholder also. From today onwards, no one should entertain him as ANSU president. Otherwise, last time भी जब उनको इंजंक्शन दिया था, काफी मीडिया लोग आफ्टर दैट ऑल्सो इंटरटेन हिम एज अ प्रेसिडेंट आंसू। एट ए टाइम कुछ चीज होता है जो हम भी हाँ चलो हो जाएगा सोचा था, बट दिस टाइम आई वोंट स्पेयर इट। आई विल ड्रैग दोज perpetrators to the court in a contempt of court. And lastly, I do appeal everyone to comply this honorable high court judgment and will make a conducive atmosphere within the organization, in a community as well as in a state. अशोक जी, जैसे कि आपको भी पता है कि इस वक्त नेस का तरफ से, निसी लाइफ सोसाइटी का तरफ से एक 5 मेंबर का एक कमिटी फॉर्म किया था कि फैक्ट फाइंडिंग की कौन प्रेसिडेंट है कौन नहीं है। सर, उसका तरफ से अभी तक क्या रिस्पॉन्स है और उसका तरफ से आपको क्या अप्रोच आया है अभी तक, और ये ऑर्डर को लेके उन लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? That fact finding committee actually it's not pertaining to President All Nisi Student Union. It was earlier the chaos which was being happening inside the organization. So once I have assumed as a president All Nisi Student Union, then that chaos and that earlier order stand in fractures. उसके बाद जो अभी 5 standing जो committee हमारा जो निसी elite society का जो है, they have taken up and took a cognizance of our 5 days ultimatum which we have served to district administration, Deputy Commissioner ICR for accounting of the ballot box which is being sealed in police station of Itanagar. तो उसमें एक वेरी सिंपल सा क्लियर है, देखो पब्लिक भी कंफ्यूजन नहीं होना है। दैट सील बैलेट बॉक्स विच वाज बीइंग सील्ड
during last Assistant General Conference of all NISI Student Union by stating that the lower court order, which was given to Mr. Romesh Maga as a Vice President candidate, at that time even the President wrote a letter to Chief Election Commissioner also to allow Mr. Romesh Maga to participate as a Vice President. And at that time what happened during the counting period, बिकॉज क्योंकि जो वीपी है वाइस प्रेसिडेंट उनका बैलेट बॉक्स जो है अलग था और बैलेट पेपर भी अलग बनाया गया था, तो इसलिए जितने भी जो कैंडिडेट्स है उनका साथ उनका सिंक्रोनाइज होकर काउंट नहीं हो पाया, तो लेटर ऑन स्टेज में उसको काउंट करने के लिए बात हुआ था। तो इन बिटवीन दैट उन्होंने क्या किया कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसको जिनमें रमेश मागा का जो फेवर में गया है उनको एलो करो बोलने वाला को, उनको उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाला है कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। तो उसमें डीसी और जो देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्लियर कट सेड कि बीपी का जो काउंट करना नहीं करना इट विल बी डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ दैट रिट पिटीशन व्हिच वाज लिस्टेड आफ्टर 2 वीक्स। तो इन बिटवीन क्या हो गया कि बिफोर द 2 वीक्स, बिफोर द लिस्टिंग ऑफ मैटर, दोस द पिटिशनर्स, द अपोजिट पार्टी, दे विथड्रॉ द पिटीशन, meaning thereby the lower court order which was in favor of Mr. Ramesh Maga to allow him to participate as a vice president candidate remain standing। तो इसलिए हमारा जो है अल्टीमेटम भी यही था कि जब लोअर कोर्ट का स्टैंडिंग जो है आपका ऑर्डर स्टैंडिंग करता है तो काउंट करना है। एंड somehow they are saying matter is sub judice, when we say matter is sub judice, when there is no any standing order from honorable court, that matters उनको बोला जाता है sub judice। Whereas in matter of this vice president, there is already a standing order कि रमेश मागा को participate करने देना। Participation of election means the complete of election। अभी तो उनको कैंडिडेट एलो किया है, हमारे स्टूडेंट लोग जो वोट मारा है उसका बाद काउंट नहीं होता है। दिस इज ए पार्शियल कंप्लायंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर। इसलिए जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वी हैव सबमिट ए रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो फॉर काउंट ऑफ द बैलेट बॉक्स। तो हमारा जो है पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो निसी एलिट सोसाइटी, उन्होंने एक कमिटी जो गठन किया एंड दे हैव समन्ड अस आल्सो। और हमारा साइड से भी जो है जितना भी जो है उनको जो है अप्राइज करना था टेक्निकली जो कागज, वी हैव सबमिटेड इट ऑलरेडी टू कमिटी आल्सो। एंड उनका भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी इनका ये प्रपोजल रहा, रिक्वेस्ट रहा कि हमें ये जब पेरेंट है तो वी विल लुक द मैटर वेरी सीरियसली। आप लोग जो है ये आपका डेमोक्रेटिक जो भी मूवमेंट होगा उनको जो है अभी हाथ में ना ले। सो वी हैव ऐसे एक अपना जो है निजी समाज का जो है एक रेस्पेक्ट करते हुए वी हैव ऑल्सो कि हाँ तब तक के लिए हम भी होल्ड ऑन करेगा एंड वी आर एंटिसिपेटिंग ए गुड स्टेडी एंड फास्ट ट्रैक आउटकम फ्रॉम निसी एलिट सोसाइटी। दैट्स इट। जैसे कि आपको भी पता है कि काफी दिनों से सोशल मीडिया के थ्रू में ऐसे चर्चा चल रहा था कि एक जो है फेसबुक का है और एक जो है इलेक्टेड है, लगता है आज ये खत्म हो चुका है। इस रिगार्डिंग में आपका कुछ आपका सब कहना चाहेंगे? No, I don't have any vote for this. This honorable high court order is enough. That's it. सर मेरा एक बोलिएगा हम तो तीन होते तीन साथ का, लेकिन आप इस बार ऐसे लग रहा है लाइव मूवी में देख रहा हो, उसमें 1 घंटा देता है इसलिए आप और 1 दिन का देता है वो, और यहाँ में 1 ईयर तीन बचता है, तो आप स्टूडेंट को कैसे मतलब सर्व कर पाएगा? No, कम समय में you see this regarding this tenure, ये जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अकेला का बात नहीं है, ये जनरल बॉडी का जो हमारा जो है असेंबली होता है इंक्लूडिंग ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, कॉलेज स्टूडेंट यूनियन, ये सब हम जो है कल आने वाले में भी टेबलिंग करेगा। जो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू होगा, जनरल असेंबली होगा, एक जो भी चीज़ प्रोसेस होगा इट शुड बी वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल होना है। हम अभी मन मर्जी से बोलेगा ऐसे चलाएगा ये चलाएगा नहीं होता। यूनियन आर बीइंग रन बाय द 2/3 मेजॉरिटी। तो हमारा जो आने वाला जब भी कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू होगा, असेंबली होगा, वी विल प्लेस दिस मैटर आल्सो एंड वी विल चॉक आउट अ वेरी एमिकेबल सॉल्यूशन आल्सो। थैंक यू सर। और एक सवाल है सर, आपके इलेक्शन में आंसू को 2 वोटा दिए गए हैं, तो आप कैसे कहते हैं किस प्रकार से होना चाहिए, आपको कितना सीट देना चाहिए? नो, देखिए अगर वहाँ आपको जो एक रेस्पेक्टफुल वे में आपको जब प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी को जो है आपका सीबीओस का बेस करके जब 2 वोट राइट देता है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू इन दिस ऑल्सो, क्योंकि वो एक रेस्पेक्टफुल वे में जो है आपको 2 को ऑनरेबल एक रिगार्ड एक देता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि डीएसयू का जैसे हमको डेलीगेट जाना ये जाना, दिस इज वेरी स्पेशल वोट।